students. So today I am going to take up Act 2 Scene 1 of Julius Caesar. Basically this is a very important scene. Why? Because here in this scene we'll see that how all the conspirators are actually planning to kill Julius Caesar. Here we'll see that how Brutus is still in a dilemmatic situation, but just for the cause of Rome he decides to go against his most favorable friend. So let's begin with the scene. Scene 1, Act 2, Scene 1, Rome. Brutus, enter Brutus. So here we'll see that Brutus is at his home. This is somewhere at around 3:30 or 4 early in the morning. सुबह सुबह की कहानी है ये, इस समय सुबह सुबह का इंसिडेंट है. एंड ब्रूटस इज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड. वो इस समय बहुत ज्यादा डिलेमेटिक सिचुएशन में है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है. सो लेट्स बिगिन. Brutus, what Lucius was? So Lucius is the servant of Brutus, and Brutus was a very very disciplined man. He was man of principles, right? So यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कैसे Brutus जो है बहुत परेशान है, because killing another man is not easy. So Brutus जो है वो बहुत ज़्यादा disturbed है, वो भी उसका बहुत अच्छा friend है Caesar. Brutus, what Lucius हो? I cannot by the progress of the stars guess how near today. So Lucius, where are you? After looking at the appearance of the star, I cannot make out that what is the time of the day. Time क्या है दिन का, मुझे समझ, रात का, क्योंकि सुबह सुबह हो रहा है. स्टार्स की मूवमेंट देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह का कितना बजा. So उसको समझ में नहीं आ रहा है. Lucius, I say, कहाँ हो Lucius? I would it were my fault to sleep so soundly. I wish. यहाँ पे बेसिकली साउंड स्लीप जो है वो पीस से रिप्रेजेंट किया है. सो जनरली हम लोग साउंड स्लीप तभी ले पाते हैं जब हम लोग पीसफुल हो, माइंड हमारा परेशान ना हो. काश मेरे अंदर भी ये फॉल्ट होती कि मैं भी इतना पीसफुली सो सकता. When Lucius, when awake, I say Lucius, when are you coming? Lucius, उठो, come, tell me what is the time. Enter Lucius. Lucius आते हैं. Lucius, called you, my lord. Did you call me, sir? Brutus, give me a taper in my study. Lucius, taper is the candle. Candle लगा दो Lucius मेरी study में. When it is lighted, come and call me here. When you have lighted the candle, यहाँ पे आके मुझे बुला लेना. Lucius, I will, my lord. Okay, sir, I will do that. Brutus, it must be by his death. So Brutus has actually made up his mind. यहाँ पे Brutus is in a like confused state of mind. He is not very sure that what he should do, right? लेकिन कहीं पे उसने अपने माइंड को ये भी कर लिया है कि yes, only by killing Caesar हमारे रोम को हैप्पीनेस मिल सकती है. So Brutus, it must be by his death. So Brutus यहाँ पे बहुत ही confidently कह रहा है, that means he has made up his mind that only after killing Julius Caesar हमें हैप्पीनेस मिल सकती है. एंड फॉर माई पार्ट आई नो नो पर्सनल कॉज टू स्पर्न एट हिम. स्पर्न मतलब अटैक हिम. देखो ब्रूटस हैज नो पर्सनल रीजन टू किल जूलियस सीजर. उसका खुद का कोई पर्सनल रीजन नहीं था जूलियस सीजर को मारने का. बट फॉर द जनरल, बट फॉर द सेक ऑफ जनरल पब्लिक मुझे जूलियस सीजर को मारना पड़ेगा. ही वुड बी क्राउन्ड. अगर वो डिक्टेटर बन गया, अगर उसको क्राउन मिल गया जूलियस सीजर को, how that might change his nature, how far that might affect his nature. कितना, अगर देखो जब तक हमारे पास पार नहीं होती है हम लोग सब लोग वीक, बिल्कुल सॉफ्ट, सबकी हेल्प करने वाले होते हैं. लेकिन जैसे ही पार आती है वैसे ही एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है. सो वही वो कह रहा है कि अगर उसको क्राउन मिल गया तो पता नहीं जूलियस सीजर का नेचर कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा. There's the question. That is the main point. ये main point है. अभी तक उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन after getting the power, he might change. It is the bright sun that brings forth the adder. See, बहुत important है. Adder को यहाँ पे serpent होता है, सांप को बोला जाता है. So जब heat होती है, तब सर्पेंट बाहर आता है, तब सांप बाहर आता है. तो यहाँ पे जूलियस सीजर को बोल रहे हैं कि जब उसके पास पावर आएगी, हीट मतलब पावर, जब उसके पास पावर आएगी तब उसका रियल फेस हम सबके सामने आएगा. एंड दैट
craves very walking. So one should be very careful. जब हीट आती है तब सांप बाहर आता है, तो हमें बहुत ज्यादा बच के चलना चाहिए. इन द सिमिलर मैनर जब जूलियस सीजर के पास पावर आएगी तब उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हमें उससे बच के रहना पड़ेगा. Crown him that and then I grant we put a sting in him. अगर हमने क्राउन कर दिया तो हम सांप में एक तरह से डस्ट डाल देंगे, एक तरह से अपने आप को हर्ट करने के लिए जूलियस सीजर को ये पावर दे रहे हैं. सो वी शुड नॉट क्राउन जूलियस सीजर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. जैसे एक सांप है वो हमें हार्मलेस है, लेकिन अगर उसमें स्टिंग डाल दो, स्टिंग मतलब डंक डाल दो, तो वो डेफिनेटली आपको डसेगा. वैसे ही जूलियस सीजर अभी हमें कुछ नहीं हर्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसके पास पावर आ गई तो डेफिनेटली वो हमें हर्ट करेगा. That at his will we may do danger with, and with that he might do a lot of danger to Roman people. The abuse of greatness is when it disjoins remorse from power. Bad side of greatness तब आती है जब हम उसमें से kindly feelings हटा देते हैं और सिर्फ tyrant वाली forceful ruler वाली feelings रह जाती हैं उसमें. And to speak truth of Caesar, I have not known when his affection swayed more than his reason. Frankly speaking, मैंने कभी नहीं देखा है कि Caesar was affected by his feelings rather than by his intellect. वो हमेशा दिमाग से चला है, कभी वो feeling से तो चला नहीं है. But it is a common proof that lowliness is young ambition's ladder. See, ये बात तो सच है कि humbleness सिर्फ जो हमें ऊपर एम्बिशन पे पहुंचने का जरिया होता है, लैडर होता है, उसका बस एक पहला पार्ट है. जैसे ही हम ऊपर तरक्की करते हैं वैसे ही हमारे अंदर से हम्बलनेस, हमारे अंदर से अच्छी क्वालिटी सब गायब हो जाती हैं. जब तक हम नीचे ओहदे पे रहते हैं, जब तक हम लोग सक्सेस नहीं अचीव करते हैं, तभी तक हमारे अंदर हम्बलनेस, हमारे अंदर जेनरोसिटी रहती है. एज सून एज वी रीच अप टू द प्लेस वी वांट, दैट मीन्स सक्सेस हमें मिल जाती है, हमारे अंदर से सारी ह्यूमैनिटी, हमारे अंदर से सारी जेंटलनेस गायब हो जाती है. एक तरह से कह सकते हैं पावर करप्ट्स माइंड. Whereto the climber upward turns his face, but when he once attained the upmost ground, he turns onto the ladder, turns his back, looks in the cloud, scorning the base degrees by which he descends. Very important. See, जब एक क्लाइंबर है जो सीढ़ी चढ़ रहा है, वो तब तक सीढ़ी पे ध्यान देगा जब तक वो ऊपर नहीं पहुंच जाता है. एक बार वो ऊपर पहुंच गया तो पीछे मुड़ के जिस सीढ़ी ने उसको ऊपर पहुंचाया था उस पर कभी ध्यान नहीं देगा. That means once a person who achieves success, he will forget all the people who have helped him in order to climb that ladder. उस सीढ़ी तक पहुंचने में जिन लोगों ने मदद की थी सबको वो भूल जाएगा और सिर्फ अपनी बैक दिखाएगा, सिर्फ अपनी पीठ दिखाएगा. वो कभी भी पलट के उन लोगों के लिए फेथफुल नहीं खड़ा होगा. सो सीजर में तो सीजर भी ऐसा कर सकता है. देन lest he may prevent, so he should be prevented from doing that. वो फ्यूचर में ऐसा कर सकता है, इससे अच्छा है हम उसको अभी प्रिवेंट कर दें. And since the quarrel will bear no color for the thing he is passionate thus, see, अभी उसको हर्ट करने से कोई फायदा नहीं है. अगर अभी सीजर को हर्ट किया तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे लिए डेंजरस नहीं है. लेकिन हम अपने मोटिव को ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं. कैसे? That what he is augmented would run to these and these extremities and therefore think him as a serpent's egg. तो हम लोग ऐसे उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अभी जो है प्लस उसमें अगर हम उसकी और पावर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, उसके अंदर की जो एक्सट्रीम फियर्स है, एक्सट्रीम इवल्स हैं, जो हम डरते हैं, वो सबके सामने आ जाएंगे. उसके अंदर की सारी नेगेटिविटीज सामने आ जाएगी. जस्ट लाइक कैसे अ सर्पेंट्स एग, जैसे एक सांप का गोला, सांप का अंडा होता है, बिल्कुल उसकी तरह. कैसे? which hatched would as his kind grow mischief and kill him in the shell. See, सीजर को उसने कंपेयर किया एक सांप के अंडे से, serpent's egg से. क्या? अगर serpent का एग बचपन में ही एग में ही उस serpent को मार दो, सांप को मार दो, तो वो आपको हर्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर वो हैच हो गया, अगर उसमें से सांप निकल आया, तो सांप की तो फितरत होती है कि वो डसेगा, तो वो
हर हाल में आपको मार देगा। तो इससे अच्छा है हम सीजर को, जब तक उसके पास पावर नहीं आई है, हम पहले ही उसको मार दें। अगर बाई चांस हमने उसको छोड़ दिया तो बिल्कुल बिल्कुल जस्ट लाइक अ सर्पेंट्स एग, उसमें से सांप निकलेगा, वैसे ही सीजर के अंदर की इविलनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी और हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान वो कर सकता है। हम लोग मतलब ऑल द रोमन पीपल। री-एंटर ल्यूशियस। ल्यूशियस आता है, the tapper burnt in your closet, sir. The candle is burning in your closet, in your room, sir, study room, sir. Searching the window for a flint, I found this paper. बेटा flint क्या होता था? It was actually before the invention of the matchsticks. Stones को या लकड़ी टाइप्स होता था, उसको जला के लाइट प्रोड्यूस करते थे. So while I was searching for the flint, I found this paper. Thus sealed up. याद है कैसियस ने प्लान किया था कि ब्रूटस के रूम में सारे डिफरेंट हैंड राइटिंग्स में वो लेटर्स पहुंचाएगा। तो यहाँ पे उसी लेटर को वो लेके आया। ल्यूशियस बोल रहा है, सर मुझे ये लेटर मिला, ये सील्ड था आपके कमरे के पास, विंडो के पास, एंड आई एम श्योर इट डिड नॉट लाई देयर व्हेन आई वेंट टू बेड, एंड आई एम श्योर जब मैं सोने गया था तब ये नहीं था, मतलब रात में कोई इसको डाल के गया है। गिव्स हिम द लेटर, वो लेटर देता है ब्रूटस। Get you to bed again, it is not day. You may go back to your bed, thank you, and अभी भी सुबह नहीं हुई है तो अभी तुम सो सकते हो। Is not tomorrow, boy, the Ides of March. So he is just reconfirming कल Ides of March है। याद है सूटसेयर ने सीजर को बिवेयर किया था, so वही वो कंफर्म कर रहा है, कल Ides of March है ना। Lucius, I know not, sir. I really don't know, sir. Brutus, look in the calendar and bring me word. See, go and look into the calendar and let me know कि कल Ides of March है कि नहीं है, 15th of March. Lucius, I will, sir. Okay, sir, मैं जा रहा हूँ. Brutus, the exhalations whizzing in the air give so much light that I may read them. See, the luminous gases which are there in the air tonight, ये इतना ज़्यादा light दे रही है कि मैं लेटर ऐसे ही read कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो डिस्टर्बेंस और स्टॉर्मी नाइट का दिखाया गया है, ये सिंबलाइज कर रहा है इनर डिस्कॉर्ड विच इज गोइंग विद इन ब्रूटस माइंड। ब्रूटस के माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये उसको भी, ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे डार्कनेस जो है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग कंफ्यूजन विच इज गोइंग इन ब्रूटस माइंड। ओपन्स द लेटर एंड रीड, वो ओपन करता है लेटर और रीड कर रहा है। इसमें लेटर में क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ब्रूटस, thou sleepest. Brutus, you are sleeping. You are not seeing the condition of Roman public. Awake and see thyself. Awake and see yourself. उठो और खुद देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. Shall Rome in according speak, strike, redress. So Brutus should actually recognize his worth. Brutus should recognize his noble nature, and Brutus should do something for Rome. Rome को इस tyranny से, इस डिक्टेटर से बचाने के लिए ब्रूटस को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा. So this was actually written in the letter. Brutus, thou sleepest, awake. Such instigations have been often dropped where I have took them up. So this is saying, this letter is saying that I am sleeping. इस तरह के hints तो अक्सर मेरे पास आए हैं जब से मैं इनको accept कर रहा हूँ. Shall Rome in according, और ये सब लिखा हुआ है. So basically इसमें ये बताया है कि जूलियस सीजर is not the right person जिसको पार मिलनी चाहिए, जिसको क्राउन मिलना चाहिए. एंड ये सारा किया धरा तो कैसियस का ही है. तो कैसियस का ये पॉइंट ऑफ व्यू है दैट जूलियस सीजर इज नॉट राइट और ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट ब्रूटस अपने पास. आपको पता होगा कि ब्रूटस एंड कैसियस ये लोग रिलेटिव्स हैं, राइट. ब्रूटस जो है वो उसकी बहन से कैसियस की शादी हुई है. In spite of all these things, we can say that Cassius is a very, very clever and a very selfish kind of a man. In spite of all this, वो Cassius किसी भी तरह Brutus को अपने प्लान में शामिल करना चाहता है. तो इस वजह से वो इतने सारे कन्विंसिंग लेटर्स लिख रहा है और वो इतना क्लेवर है कि वो एक्चुअली में ब्रूटस को कन्विंस कर चुका है. अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं. Thus must I piece it out. So I think I must think about it. मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में. Shall Rome stand under one man's awe? क्या रोम एक बंदे की डर के अंदर रहेगा? क्या रोम इतना वीक हो गया है कि उसको एक पर्सन कंट्रोल करेगा? My ancestors did from the streets of Rome the Tarquin drive when he was called the king. See, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा because रोम के अंदर
सकता है। इवन मेरे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने तारक्वीन को स्ट्रीट्स ऑफ रोम से हटा दिया गया था जब उसको किंग का दर्जा दिया जा रहा था। तो इवन आई शुड डू समथिंग। मेरे एंसेस्टर्स ने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, मुझे भी कुछ करना चाहिए अपने रोम के लिए। स्पीक, स्ट्राइक, रिड्रेस। नाउ रिड्रेस मीन्स जो गलत हुआ है उसको सही करना है। वी हैव टू अंडू द रॉन्ग। जो गलत हो चुका है उसको सही करना है, रेक्टिफाई करना है। आई एम एंट्रीटेड, आई एम अड्रेस, मुझे बोला गया है। टू स्पीक एंड स्ट्राइक, मुझसे बोला जा रहा है कि मैं स्पीक करूं, मैं स्ट्राइक करूं, मुझे लोग अपील कर रहे हैं, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए। ओ रोम, आई मेक दी प्रॉमिस, इफ द रिड्रेस विल फॉलो, दाउ रिसीवेस्ट thy full petition at the hands of Brutus. I promise you that if this redress will follow, अगर ऐसा होता है, your request, जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो वो मैं ग्रांट करूंगा by the hands of Brutus. मैं इसको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो भी तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो मैं उसको फुलफिल करूंगा। So here we can see that the later plan of Cassius has actually affected Brutus tremendously. बहुत ज्यादा Brutus उससे अफेक्ट हुआ है। Re-enter Lucius. Lucius आता है। Lucius, sir, March is wasted 15 days. Yes, we have already passed 15 days. मतलब 15 तारीख हो गई है। Actually में यहाँ पे एक foreshadowing दी जा रही है। Foreshadowing कर रहे हैं ऑडियंस के लिए, बताने के लिए कि कुछ evil होने वाला है। Knocking within, अंदर से नॉक होता है। Brutus, it is good. Go to the gate. Somebody knocks. So जाओ देखो कौन है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। Exit Lucius. Lucius चला जाता है। अब जो ब्रूटस का स्टेट है, वी कैन सी दैट वो बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में है। आफ्टर ऑल सीजर है तो उसका फ्रेंड, तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है। सो लेट्स सी। सिंस कैसियस फर्स्ट डिड वेट मी अगेंस्ट सीजर, आई हैव नॉट स्लेप्ट। सी सिंस द टाइम कैसियस हैज इंसाइटेड मी, शार्पेंड माय फीलिंग्स अगेंस्ट सीजर, तब से मैं सो नहीं पाया हूँ। कैसियस ने जब से मुझसे बोला है ना ये सारी बातें, मुझे नींद नहीं पड़ रही है, मैं इतना कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। Between the acting of dreadful thing and the first motion, all the interim is like a phantasm or a hideous dream. See, कोई प्लान हमने किया, हमें ये करना है, और जब तक वो प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बीच का जो समय होता है ना वो बहुत भयानक होता है। It's just like a terrible dream, क्योंकि वो समय एग्जीक्यूशन से लेके प्लानिंग के बीच का समय, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन के बीच का समय इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा भयानक होता है, जस्ट लाइक अ नाइटमेयर, हॉरिबल ड्रीम की तरह होता है। द जीनियस एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स, जीनियस मतलब जो गाइडिंग स्पिरिट है, एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स आर देन इन काउंसिल। सोल ऑफ मैन, और जो स्पिरिट है हमारी मॉर्टल स्पिरिट है वो डेलिबरेटली, मतलब वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्लिक्ट में है, क्या करना है समझ में नहीं आता है। Like a little kingdom suffers then the state of an insurrection. Just like एक छोटा सा किंगडम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिबेल चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, वैसे ही मैन का माइंड हो जाता है जब हम कोई एक गंदा प्लान कर रहे होते हैं और जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उस बीच का जो टाइम होता है वो दिमाग खराब करने वाला होता है। इतना कंफ्लिक्ट, कहीं ऐसा हुआ तो ये हो गया, तो ये हो गया, बहुत ज्यादा क्योस कंफ्यूजन रहता है। री-एंटर ल्यूशियस, ल्यूशियस एंटर करते हैं। ल्यूशियस, सर इट इज योर ब्रदर कैसियस एट द डोर। सर, मैंने अभी बताया ना ब्रदर नहीं है, वो ब्रदर इन लॉ है। सो सर इट इज योर ब्रदर कैसियस एट द डोर। सर आपका ब्रदर इन लॉ कैसियस आए डोर पे, हु दैट डिजायर टू सी यू, हु इज एक्चुअली विशिंग टू सी यू, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ब्रूटस, इज ही अलोन, अकेले आए हैं? नो सर, देयर आर मोर विद हिम। नहीं सर, उनके साथ और भी लोग आए हैं। ब्रूटस, डू यू नो देम, क्या तुम उनको रिकॉग्नाइज करते हो जो बाकी लोग आए हैं कैसियस के साथ? Lucius, no sir, their hats are plugged about their ears. No sir, they have actually covered their entire face. उनकी जो hats है वो कान तक है, उनके जो overcoat है वो सब covered है। And the half face is buried in their cloaks. Long coat को cloaks बोलते हैं, तो उनके faces are buried in their cloaks. That by no means I may discover them. And under any circumstances, I am not able to see their faces. मुझे उनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। By any mark of favor, हल्का सा भी स्लाइट फेसेस भी मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। फेवर मतलब फेसेस। ब्रूटस, लेट देम एंटर। ठीक है, देखो ब्रूटस न्यू कि कैसियस क्यों आया है, इतनी रात में आया है, रात में ही सारे इविल वर्क एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे वो जानता है कि वो अगर कैसियस आया है तो वो प्लानिंग के पर्पज से ही आया है, तो वो इसलिए अलाउ कर देता है, अच्छा ठीक है भेज दो सबको। दे आर दी फैक्शंस, पार्टी है, वो सब पार्टी है। और कॉन्स्पिरेसी से यहाँ पे अगेन सॉले लिखी है,
यहाँ पे ब्रूटस इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. ओ कॉन्स्पिरेसी, शेम इज thou to show thy dangerous brow by night. See, all the evilness is carried out during night. Oh conspiracy, you are afraid to show your dangerous face even at night. रात में जब अंधेरा नहीं है तब भी तुम्हें शक्ल, क्योंकि देखो बुरा काम कर रहे हैं तो मुंह तो छुपाना ही पड़ेगा ना. अच्छा काम हम लोग कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, बुरे काम के लिए हमें मुंह छुपाना पड़ता है. सो यहाँ पे उसी को रेफर कर रहे हैं. When evils are most free, रात में जब evils इतने free हैं, even then you have to hide your face. Oh, then by day, where will thou find a caravan dark enough to mask thy monstrous visage? See, जब रात में जब evils इतने free होते हैं तब तुम्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है, तो दिन में तुम कहाँ अपना मुंह छुपाओगे? जब सब कुछ इतना open होता है, इतना vibrant होता है, then where will you find cave dark enough to hide your face? Seek none conspiracy, hide it in smiles and affability. See, very important. See, dangerous people never show through their face that we are dangerous. जो लोग जो evil people होते हैं वो कभी मुंह से नहीं दिखाते हैं कि वो evil है. हमेशा एक बड़ी सी smile, pleasant face रखेंगे. दिमाग में उनके बहुत dangerous चीजें चलती हैं, लेकिन face पे वो कभी भी reveal नहीं करते हैं. तो यहाँ पे उसी को वो बोल रहा है कि देखो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है darkness. आप अपने फेस में ही स्माइल के थ्रू, प्लेजेंट अपीयरेंस के थ्रू अपने अंदर की इविलनेस को हाइड कर सकते हैं. फॉर इफ द पाथ दाई नेटिव सेम्बलेंस ऑन नॉट एर्बिस इटसेल्फ वर डिम इनफ टू हाइड दी फ्रॉम प्रिवेंशन. अगर आप अपने नेचुरल अपीयरेंस के साथ, इविलनेस के साथ वॉक करिए तो इवन हेल विल नॉट बी डार्क इनफ to hide your evil purpose. आपके अंदर की जो evilness है, even hell is not dark enough to hide it, but you can hide it with a smile. You can hide it with a pleasant face. So ये एक moral world में भी हम बोल सकते हैं कि जितने भी evil people होते हैं, they never come up and say I am evil. They always put up a very pleasant face, a very beautiful smile, and they cheat you, right? Enter Cassius, Casca. See. Again, all of them are disguised in a very shady appearance. बहुत ही shady way में आए हैं. क्यों? क्योंकि evil चीज करने आ रहे हैं, evil चीज की plotting करने आ रहे हैं. Casca is again a conspirator and he is the first person to stab Julius Caesar. अभी आगे हम लोग देखेंगे कि पहला person यही है जो stab करता है Julius Caesar को. Decius, Cinna, Metellus Cimber and Trebonius, these are all conspirators. इसमें Decius जो है वो उसका सरनेम है Decius Brutus. He is also a very important person because ये बहुत अच्छा मैनिपुलेटर है, बहुत अच्छा कन्विंसर है. और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये कन्विंस करता है जूलियस सीजर को सेनेट लाने में. अगले सीन में देखेंगे. Cassius, I think we are too bold upon your arrest. I think we are too bold. I'm sorry. It's a way of saying sorry कि हमने आपके रेस्ट को, आपके लेजर टाइम को ब्रेक कर दिया. This is not the right time. I'm so sorry. Good morrow, Brutus. Do we trouble you? Good morning, Brutus. क्या हमारे आने से आप परेशान हुए हैं? हमने आपको डिस्टर्ब किया है, नींद खराब की है? Brutus, I have been up this hour awake all night. See, मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट चल रहा है. मैं तो पूरी रात ही जगा हूँ. मेरे दिमाग में इतने कन्फ्यूजन चल रहे हैं, इतने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि मैं तो सोया ही नहीं हूँ. Know I these men that come along with you. So identity तो hidden है, सब लोग इतना ज़्यादा covered up हैं. तो वही वो पूछ रहा है कि क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ जो आपके साथ आए हैं? Yes, Cassius. Yes, every man of them. हाँ, हर बंदे को आप जानते हो. And no man here but honors you. Everyone in fact respects you. You hold a very respectable position in everyone's eyes. आप सब आपको बहुत ज़्यादा respect करते हैं. And everyone that wishes you had but that opinion of yourself which every noble Roman bears for you. और सब wish भी करते हैं. See, everyone holds a very respectable position for you. विश करते हैं कि काश आपको भी पता हो कि बाकी रोमन्स आपको कितना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. काश आपको भी अपनी वैल्यू पता हो. दिस इज ट्रिबोनियस. अब वो एक ही पर्सन से इंट्रोड्यूस कर रहा है. ये ट्रिबोनियस है. ब्रूटस, ही इज वेलकम हियर. कैशियस, दिस इज डिशियस. ब्रूटस ये डिशियस है. ब्रूटस, ही इज वेलकम टू. ही इज ऑल्सो वेलकम. कैशियस, दिस इज कैस्का. दिस सिना एंड दिस मेटलस सिम्बर. ये कैस्का, ये सिना, ये मेटलस सिम्बर है. दे आर ऑल वेलकम. सब लोग यहाँ पे वेलकम है. What watchful cares do interpose themselves between your eyes and the night?
सो इज आस्किंग कि ऐसी कौन सी बात आ गई जिसकी वजह से आप पूरी रात आप सब लोग जगे हुए हो, यू पीपल हैव नॉट स्लेप्ट, यू पीपल हैव टायर्ड योर आईज, ऐसी क्या बात हो गई कि पूरी रात जगने वाली कौन सी बात हो गई है? कैसियस, शैल आई एंट्री द वर्ल्ड, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो वो कॉर्नर में लेके जाता है कि सर मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ब्रूटस एंड कैसियस विस्पर, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। डिशेस, हियर लाइज द ईस्ट, दैट नॉट द डे ब्रेक हियर, सो दे आर एक्चुअली डिस्कसिंग कि ईस्ट किस तरफ है। तो वो एक तरफ पॉइंट करके कहते हैं ये ईस्ट है, यहीं से डे ब्रेक होगा क्या? कैस का नो, नहीं ये नहीं है। Sina, oh pardon sir, it's that. And your grey lines that fret the clouds are the messenger of the day. No sir, मेरे ख्याल से यहीं से होगी लाइट। और ये जो ग्रे लाइन है जो स्काई के अंडर में, दिस इज एक्चुअली मार्किंग द ब्रेक ऑफ द डे, मॉर्निंग को ब्रेक कर। तो अगेन अर्ली मॉर्निंग का सीन है, तो दे आर एक्चुअली मेकिंग आउट ये ईस्ट है, यहाँ से डे ब्रेक होगा। कैस का, you shall confess that you are both deceived. No, you people shall confess कि आप दोनों mistaken हो। ईस्ट ये नहीं है। Here, as I point my sword, the sun rises. जहाँ पे मैं sword point कर रहा हूँ, यहाँ से sun rise करेगा. Which is a great way growing on the south, weighing the youthful season of the year. उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी एंड ऑल तो इतना होता नहीं था, तो वही वो कह रहे हैं कि अर्ली सीजन है, डे ब्रेक है, तो साउथ इधर होगा, तो मेरे ख्याल से ईस्ट इस तरफ पड़ेगा, तो अंदाजा मार रहे हैं ये लोग। Some 2 months hence, up higher towards the north, he first presents his fire. See, जनवरी फरवरी निकला है, ऑलमोस्ट 2 months निकले हैं अभी, और मेरे ख्याल से वो बीम जो है वो इस तरफ नॉर्थ की तरफ हल्की फुल्की आएगी। एंड द हाई ईस्ट स्टैंड्स एज द कैपिटल डायरेक्टली हियर, और जो डायरेक्टली जो कैपिटल है, कैपिटल इज द सेनेट हाउस, सो डायरेक्टली ईस्ट जो है वो टुवर्ड्स द कैपिटल पड़ेगा, मेरे ख्याल से इस तरफ ईस्ट है। ब्रूटस, सी कुछ कैसियस और ब्रूटस ने कुछ बात किया। अब ब्रूटस इज वांटिंग दैट एवरीवन शुड होल्ड ईच अदर्स हैंड, कि हाँ हाँ हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, चलो हाथ पे हाथ रखते हैं। ब्रूटस, गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर वन बाय वन। सो इट वाज एक्चुअली अ रोमन वर्जन ऑफ कुंभिया, कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के प्रॉमिस लेते हैं, कि मतलब प्रॉमिस नहीं लेते, हाथ पे हाथ रखते हैं कि यस हम सब लोग इसमें करेंगे, सब लोग इसमें अपना 100% देंगे। कैसियस, लेट अस स्वेयर आवर रेजोल्यूशन, चलो हम लोग कसम खाते हैं। देखो ब्रूटस ने सिर्फ हाथ रखने को बोला था, लेकिन कैसियस क्या कह रहा है, हम लोग को इस पे स्वेयर भी करना चाहिए। ब्रूटस, नो नॉट एन ओथ, नहीं ओथ की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉमिस की कोई जरूरत नहीं है, वी आर रोमन्स, रोमन्स झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी बात ही काफी होती है। इफ नॉट द फेस ऑफ मेन, सी इफ द सैड फेसेस ऑफ मेन, द सफरेंस ऑफ आवर सोल, जो हमारा सोल सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ जूलियस सीजर, इतनी पेन इतनी सफरेंस हम लोग जो झेल रहे हैं, द टाइम्स अब्यूज, जो इवल टाइम हम लोग झेल रहे हैं, इफ दीज बी मोटिव्स वीक, अगर ये हमारे लिए इंस्पायर करने के लिए, हमारे मोटिव के लिए सफिशिएंट नहीं है, ब्रेक ऑफ betimes and every man hence to his idle bed, इट्स बेटर हम लोग अपना प्लान यहाँ पे रिजॉल्व कर दें, यहीं पे खत्म कर दें, हम लोग अपना प्लान यहीं पे ब्रेक कर दें, एंड एवरीवन शुड गो बैक टू देयर आइडल बेड्स। आइडल बेड्स एम्प्टी बेड्स के लिए बोला गया। क्या फायदा प्रॉमिस करने से, क्या फायदा, हम लोग खुद ही इतने ज्यादा ट्रबल में, इतने प्रॉब्लम में है, वो ही हमारे लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ है, क्या जरूरत है कि हम प्रोमिसेस लें। So let high-sighted tyranny rage on till each man drop by lottery. So इससे अच्छा है कि जो arrogant tyranny है, forceful ruler है, वही हम लोग को इतना टॉर्चर करे कि हर बंदा पहले ही अपनी डेस्टिनी से पहले ही मर जाए। देखो हम लोग ऑलरेडी इतना टॉर्चर्ड है, इतना परेशान है, अगर वो मोटिव सफिशिएंट नहीं है तो प्रॉमिस लेने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा, हम लोग प्रॉमिस तो आप ब्रेक भी कर सकते हो, प्रॉमिस लेने से कोई फायदा नहीं है। But if these, as I am sure they do, bear fire enough to kindle cowards, kindle मतलब insight, लेकिन ये जो troubles हैं, जो हमारे situations है, ये खुद ही में इतनी sufficient है कि cowards को भी ये incite कर सकती हैं, ये cowards में भी जोश भर सकती हैं। cowards मतलब कायर, डरपोक। To steal with valor the melting spirits of women. See, strength कर सकते हैं with power, the spirits, women are considered very soft, delicate, even the women's melting spirit can be strengthened. उन लोगों में भी हम करेज भर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स दिखा के, अपनी ट्रबल्स दिखा के, कितना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस हम लोग फेस कर रहे हैं। Then countrymen, what need we any spur but our own cause to pick us to redress? We do not need any kind of promises or any kind of force other than our situations. हमारे situations ही हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं
जस्टिस पाने के लिए कि हमें कोई और प्रॉमिस या कोई फेक अलग से कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. What other bond than secret Romans that have spoke the words and will not falter? See, they are Romans and Romans don't need oaths. Romans हैं भाई, हम oaths की हमें requirement नहीं है. Why? Because they are true to their words. अपने शब्दों पे कायम रहते हैं. वही वो बोल रहे हैं कि हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है. रोम्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ही हमें मोटिवेट करने के लिए सफिशिएंट है. जो रोमन्स सीक्रेटली मिले हैं, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को वचन दे दिया है, वर्ड्स बोल दिए हैं, उससे ज्यादा प्रॉमिस की क्या रिक्वायरमेंट है. वो ही सफिशिएंट है अपने में. एंड व्हाट अदर ओथ दैन ऑनेस्टी टू ऑनेस्टी इंगेज्ड दैट दिस शैल बी और वी विल फॉल फॉर इट. और कौन सी ओथ की रिक्वायर्ड है? एक ऑनेस्ट मैन ने दूसरे ऑनेस्ट मैन को जब वर्ड्स दे दिए हैं तो उससे ज्यादा कोई ओथ एंड प्रोमिसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. स्वेट प्रीस्ट and cowards and men Cotylius or all feeble carrions and such suffering souls that welcome wrong. See, हम लोग को ओथ की रिक्वायरमेंट नहीं है. कौन स्वेयर करे? प्रीस्ट स्वेयर करे, कावर्ड स्वेयर करे, जो वर्थलेस मैन हैं वो स्वेयर करे, फीबल कैरियंस मतलब डेड डिकेइंग बॉडीज वाले लोग जिनके अंदर की स्पिरिट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो लोग स्वेयर करें. वी आर रोमन्स, वी आर ट्रू टू आवर स्पिरिट्स. हम लोग को क्यों स्वेयर करें? एंड सच सफरिंग सोल्स दैट वेलकम रॉन्ग. जो गलत कर रहे हो, हम लोग कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग तो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं. सो हम तो किसी भी तरह से गलत नहीं कर रहे, तो हम लोग क्यों स्वेयर करें? Unto bad causes swear such creatures as men doubt. बैड पीपल जो गलत काम कर रहे हैं उनको स्वेयर करना चाहिए, जिसपे मेन डाउट करें, अपने एक्शंस पे डाउट करें. ओनली दोज पीपल शुड स्वेयर. वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द रोम. But do not stain that even virtue of our enterprise, nor the insuppressive metal of our spirits, to think that our cause or our performance did need an oath. See, हमारा जो काम है वो प्योर वर्च्यू से भरा हुआ है. हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और हमारे एंटरप्राइज को, हमारा जो करेज है, हमारी स्पिरिट्स है, उसको हम ओथ लेके खराब नहीं करना चाहते हैं. ये तो गलत होगा ना, हमने ओथ ले लिया. ओथ तो गलत लोग लेते हैं, हम क्यों ओथ लें? हमने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को वर्ड्स दे दिए, वही बहुत है. When every drop of blood that every Roman bears and nobly bears is guilty of several bastardy, if he do break the smallest particle of any promise that he had passed from him. See, when every drop of blood, हर रोमन्स का जो एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड है वो गिल्टी फील करेगा अगर उसने जो शब्द बोले उसको फुलफिल ना करे. तो हमें ओथ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हम रोमन्स हैं, हमें तो वैसे ही बड़ा गिल्ट हो जाता है अगर हमने कुछ बोला और वो ना करें. तो ओथ किस बात की? कैसियस, व्हाट ऑफ सिसेरो, शैल वी साउंड हिम? क्या सिसेरो को भी हमें अपने प्लान में लेना चाहिए? आई थिंक ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रॉन्ग विद अस. मेरे ख्याल से वो तो हमारे साथ रहेगा. ही विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ आवर पर्पस. इस प्लान का वो पार्ट होना खुशी खुशी आएगा. कैस का, लेट अस नॉट लीव हिम आउट. हाँ यार, उसको ले लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए. सिना, नो, बाय नो मीन्स, नहीं उसको मत लेना. मेटललेस, ओ लेट अस हैव हिम, for his silver hairs will purchase us good opinion. See, उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए काम आएगा. उसके जो सफ़ेद बाल हैं, लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए काम आएगा. उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. एंड बाय मेन्स वॉइसेस टू कमेंड आवर डीड्स. सी, कमेंड मीन्स प्रेज. जो और लोग जो है, जो रोमन पब्लिक है, दे विल एक्चुअली प्रेज आवर डीड. हमारी डीड को, हमने जो सीजर को मारा है उसको अप्रिशिएट करेंगे. उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लोग उसकी बात को ईजिली मान लेंगे. इट शैल बी सेड हिज जजमेंट रूल्ड आवर हैंड्स. देखो, हम लोग उसके पीछे छुप जाएंगे. हम लोग कहेंगे उसने ऐसा बोला था तो हम लोग ने कर लिया. इतना एक्सपीरियंस जब बड़ा है, हम लोग ने उसकी बात मान ली. Our youths and wildness shall no wit appear, but all be buried in his gravity. See, हमारे अंदर की जो यूथ है, यंग एज है, वाइल्डनेस है, वो सब उसके ओल्ड एज के नीचे छुप जाएगी. हम लोग अपना जो सारा प्लान है उसके आड़ में एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने प्लान में. ब्रूटस, ओ नेम हिम नॉट, लेट अस नॉट ब्रेक विथ हिम. नहीं, उसका नाम भी मत मेंशन करना. हमें अपना प्लान उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. For he will never follow anything that other men begin. See,
वो कभी देखो ओल्ड पीपल जो होते हैं वो थोड़े स्टबर्न होते हैं, तो यहाँ पे वही वो बोल रहा है कि नहीं, वो कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दूसरों ने प्लान स्टार्ट किया है वो उसमें कभी नहीं पार्ट लेगा, वो खुद कोई चीज बनाएगा, लोगों उसमें जुड़ जाए, वो सही है। दूसरों ने जो प्लान बनाया है उसमें वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको छोड़ ही देते हैं। कैसियस देन लीव हिम आउट, फिर छोड़ देते। देखो हमें बार बार एक चीज बोलेंगे, कैसियस इज अ वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो मेटलेस सिम्बर को एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन ब्रूटस उसको ओवररूल कर देता है, नहीं उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कि वो एंटोनियो को मारना चाहता है, लेकिन ब्रूटस उसको भी मना कर देता है। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें ब्रूटस के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ साबित होती है। अगर वो शायद कैसियस की बात मान जाता इन सारे पॉइंट्स में, ये 3 मिस्टेक्स ऑफ ब्रूटस हैं, हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे भी, तो उसमें से ये भी एक पॉइंट्स हैं। चलिए, कैस्का इंडीड ही इज नॉट फिट, सही में यार उसको छोड़ देते हैं। डिशियस शैल नो मैन एल्स बी टच्ड बट ओनली सीजर, क्या सिर्फ सीजर को मारना है, किसी और को कुछ भी नहीं करना है, कोई और मैन को हमें किल विल नहीं करना है, टच नहीं करना है। कैसियस डिशियस वेलर्स डिशियस, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। I think it does not meet Mark Antony, so well beloved of Caesar should outlive Caesar. मुझे ऐसा लगता है मार्क एंटनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है मार्क एंटनी जो कि इतना ज़्यादा बिलव्ड है सीजर का, आई थिंक इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल कि हम उसको छोड़ दें। We shall find him a shrewd contriver. Contriver का मतलब होता है a schemer, planner, षड्यंत्र रचने वाला। वो बहुत कनिंग है, बहुत shrewd प्लान करता है। And you know his means if he improve them may stretch far so as to annoy us all. और ऐसा होता भी है आखिरी में, बाद में। So यार अगर जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं वो उस पर इम्प्रूव कर जाए, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट हम पे डाल सकता है कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। May well stretch so far as to annoy us all, which to prevent let Antony and Caesar fall together. और ऐसा प्रिवेंट करने के लिए आई थिंक एंटनी और सीजर दोनों को हमें मार देना चाहिए। ये सेफ नहीं होगा अगर हमने एंटनी को छोड़ दिया। मिस्टेक ऑफ ब्रूटस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक ऑफ ब्रूटस। क्या? ब्रूटस आवर कोर्स विल सीम टू ब्लडी कायस कैसियस। नो, ये तो गलत है। फिर हमारा एक्ट जो है, हमारा जो वो है, जो हम पर्पस है, वो बहुत ब्लडी लगेगा, ये गलत है। देखो ब्रूटस जो है वो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है, उसको क्या लग रहा है कि देखो सीजर से तो खतरा हो सकता है, एंटनी से क्या खतरा, क्यों हम किसी निर्दोष की जान लें। तो आवर कोर्स विल सीम टू ब्लडी कायस कैसियस, हमारा जो वर्क है, हमारा जो एक्ट है वो बहुत ब्लडी लगेगा कायस कैसियस। टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिम्ब। सी, ये तो ऐसा हो जाएगा, पहले गला काटा फिर बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज एंटनी जो है वो तो एक लिम्ब है, वो तो बस एक हाथ है। अगर हम सीजर दैट मीन्स गला ही काट देंगे तो एंटनी की तो कोई हैसियत ही नहीं बचेगी, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिम्स लाइक wrath and death and envy afterward. हाँ, ऐसा लगेगा हमने गुस्से में मारा है और उसके बाद एनवी में, जेलस में पूरी बॉडी को चॉप कर दिया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एंटनी इज बट अ लिम्ब ऑफ सीजर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आखिरी में आयरनी बनता है, क्या? एंटनी इज जस्ट अ लिम्ब ऑफ सीजर। एंटनी जैसे सीजर की बॉडी है, एंटनी तो बस उसका एक हाथ है। अगर गला दैट मीन सीजर काट दे रहे हैं, सीजर को मार दे रहे हैं, तो हाथ थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। Let us be sacrificers but not butchers. Butchers, Cassius. Butchers से मतलब कसाई। हम लोग sacrificers बने, जैसे जब भगवान को कोई चीज़ भेंट चढ़ाई जाती है तो बस गला काट के उसका एनिमल को चढ़ाया जाता है। तो हमें एज अ sacrificer करना चाहिए। Butchers की तरह अपने गुस्सा थोड़ी ना हमें दिखाना है कि हम एंटनी को भी मार दे, सीजर को भी मार दे। This is not right, Cassius. We all stand up against the spirit of Caesar and the spirit of men that there is no blood. See, हमें सीजर से प्रॉब्लम नहीं है, हमें सीजर की स्पिरिट से प्रॉब्लम है। सीजर की स्पिरिट को हम हटाना चाहते हैं और स्पिरिट में कभी भी ब्लड नहीं होता है। और दैट वी देन could come by Caesar's spirit and not dismember Caesar. But alas, Caesar must bleed for it. काश ऐसा हो सकता कि हम सीजर की स्पिरिट को मारने के लिए उसकी बॉडी को टच नहीं करते, उसका खून ना बहाते, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए तो सीजर को ब्लीड करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें सिर्फ सीजर को मारने की जरूरत है, एंटनी को टच करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बट अलास, सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट एंड जेंटल फ्रेंड्स, लेट्स किल हिम
बोल्डली, नॉट wrathfully, wrathfully मतलब savagely, गुस्से से, कॉन्फिडेंटली एज अ लाइक जैसे पैट्रियट के उसमें हमें उसको मारना चाहिए कि हम लोग देशभक्त है, हमने सीजर को मार दिया, गुस्से में आके उसकी बोटी बोटी थोड़ी ना करनी है हमें. नो, वी शुड नॉट डू दैट. लेट्स कार्व हिम एज अ डिश फिट फॉर गॉड्स, नॉट ह्यू हिम एज अ carcass फिट फॉर हाउंड. सी, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये, हमें उसको जैसे गॉड को हम ऑफरिंग्स देते हैं तो एक बार में काट के उसको ऑफर करते हैं, ना कि हमें उसको चॉप 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 करके हाउंड्स के लिए, डॉग्स के लिए प्रेजेंट करना है उसकी बॉडी. नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है. And let our hearts, as supple masters do, stir up their servants to an act of rage and after seems to chide them. हमें तो ऐसा करना है जैसे अपने हार्ट्स को, अपने हैंड्स को कमांड करना है कि पहले सीजर को मार दो और फिर बाद में रिब्यूक करो, डांटो कि तुमने ऐसा क्यों किया. हमें तो ऐसा करना है. हम दिल से थोड़ी ना सीजर को मारना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है. This shall make our purpose necessary and not envious. Envious मतलब full of jealousy. हमारा जो पर्पस है वो नेसेसरी तो जरूर हो जाएगा, जरूरी है सीजर को मारना, लेकिन जेलिसी से भरा हुआ नहीं है. With so appearing to the common eyes, we shall be called perjurers. Perjurers मतलब cleanser, cleaning of the state. हम लोग स्टेट की गंद को हटा रहे हैं. कॉमन आई के सामने, लोगों के सामने हम लोग यहाँ की गंदगी को हटा रहे हैं. तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो मोटिव है उस पर स्टिक करना चाहिए, rather than trying to kill other persons also. Not murderers. हमें murderers नहीं बनना है. And for Mark Antony, think not of him. और जहाँ तक मार्क एंटनी की बात है, प्लीज उसके बारे में तो मत ही सोचो, उसको मारना तो बिल्कुल ही गलत है. For he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. जैसे एक बॉडी में अगर किसी का गला काट दे तो आर्म यूजलेस हो जाता है, सिमिलरली मार्क एंटनी की उससे ज्यादा वैल्यू नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट मोर देन सीजर्स आर्म. और जब हम सर काट दे रहे हैं, दैट मींस सीजर को मार दे रहे हैं, तो मार्क एंटनी की कोई वैल्यू नहीं है. कैसियस, येट आई फियर हिम. तुम कुछ भी बोलो यार, फिर भी मुझे बहुत डर लगता है एंटनी से. फॉर इन द इनग्राफ्टेड love he bears to Caesar, because of the deeply rooted love which he bears for Caesar. Caesar से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, और एक्चुअली में होता भी है. नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कैसे एंटनी ही इन लोगों का डूम बनता है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है एंटनी. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रूटस, alas good Cassius, do not think of him. नहीं कैसियस, फिर भी तुम उसके बारे में मत सोचो. If he loves Caesar, all that he can do is to himself take thought and die for Caesar. अगर वो सीजर से प्यार ही करता है ना, वो खुद ही मर जाएगा. वो उसके बारे में इतना सोचेगा, वो खुद ही मर जाएगा. वो उसको मारने की जरूरत नहीं है हम लोगों को. And that were much he should. और वो उसको करना भी चाहिए. For he is given to sports, to wildness and much company. Because वो addicted है, sports से है, वाइल्ड लाइफ से है और सोशल कंपनी में addicted है. वो खुद ही मर जाएगा, तुम उससे ना परेशान हो. Trebonius, there is no fear in him. Let him not die. चलो चलो, उसमें कोई डर नहीं है, छोड़ो छोड़ो, उसको छोड़ ही देते हैं. For he will live and laugh at this hereafter. Because थोड़े दिन बाद ना वो भी हंसेगा हम लोग के साथ मिलके, परेशान ना हो, वो भी हम लोग के साथ मिल जाएगा. Clocks, Brutus. Peace, count the clock. एक सेकेंड, देखो क्या समय हो रहा है. क्लॉक की जो घंटा है उसको काउंट करो. Cassius, the clock had struck 3. 3 बजा है सुबह का. Trebonius, it is time to part. अब हम लोग को घर वापस जाना चाहिए, अब हम लोग को निकलना चाहिए. Cassius, but it is doubtful yet. लेकिन एक सेकेंड, अभी भी एक डाउट है, स्टिल डाउट है. क्या? Whether Caesar will come forth today or no. आज सीजर सेनेट आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी तो सबसे बड़ा डाउट है. आता है कि नहीं आता है. For he is superstitious grown of late, because recently वो बहुत ज्यादा superstitious हो गया है, उसके पता नहीं कैसा एटीट्यूड हो गया है. Quite from the main opinion he held once of fantasy of dream and ceremonies. Quite different. पहले तो वो ये सब मानता ही नहीं था, ये फैंटेसीज, ड्रीम्स, ये सारे सुपरस्टिशियस चीजें वो पहले विश्वास नहीं करता था, बट रिसेंटली वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गया है. It may be these apparent prodigies, the unaccustomed terror of this night, and the persuasion of his augurers may hold him from the capital today. There are many reasons. एक तो इतना भयानक वेदर हो रहा है,
ऑगरस बेटा प्रीस्ट होते हैं। अगले सीन में हम लोग देखेंगे सीजर जो है वो ऑगरस से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए प्रिडिक्शंस दें, तो ऑगरस प्रीस्ट होते हैं। तो प्रीस्ट ने जो प्रिडिक्शंस दिए हैं, प्लस इतना भयानक रात हो रही है, सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि शायद वो आज कैपिटल आई नहीं, तब हम लोग अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। Decius, never fear that if he be so resolved, I can oversway him. Do not feel afraid. डरो नहीं, अगर वो डिसाइड भी कर ले, कुछ भी डिसाइड कर ले, मैं उसको बहुत इजीली अफेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? For he loves to hear that unicorn may be betrayed with trees. ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। सो एक्चुअली में माना क्या जाता था कि यूनिकॉर्न इज माना ये जाता था कि यूनिकॉर्न इज अ वेरी वेरी फैबुलस एनिमल। उसका एक हॉर्न होता है, तो उसको कैप्चर कैसे करते थे कि उसको बहुत तेजी से आदमी के पीछे दौड़ा देते थे। अब वो जब फुल स्पीड में है तो आदमी जाता था और पेड़ के पीछे छुप जाता था, तो वो इतनी स्पीड में आता है और उसका हॉर्न जो है वो पेड़ में जाके भिड़ जाता है और उसको इजिली कैप्चर कर सकते हैं। सो वैसे वही वो बोल रहा है कि that unicorns may be betrayed with trees. Unicorns को trees के थ्रू उनको कैप्चर किया जा सकता है। And bears with glasses. See, bears को कैसे कैप्चर किया जाता था? लुकिंग ग्लासेस लगा देते थे। जो लुकिंग ग्लासेस होते हैं, मिरर्स होते हैं, वो उसके अराउंड लगा देते हैं जब बेयर्स को पकड़ा जाता है। तो क्या होता है, वो अपने रिफ्लेक्शन में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि कोई भी हंटर आता है वो उसको इजिली पकड़ लेते हैं। सो यूनिकॉर्न्स को ट्रीज के थ्रू डिसीव किया जा सकता है, बेयर को ग्लासेस के थ्रू डिसीव किया जा सकता है। एलिफेंट्स विथ होल्स, एलिफेंट्स के लिए डिग कर देते हैं होल्स और उस पर घास वास लगा देते हैं, एलिफेंट जाते हैं उसमें गिर जाते हैं, तो उनको वैसे कैप्चर किया जा सकता है। लायंस विथ टॉयल्स, टॉयल्स मतलब ट्रैप्स, लायंस को ट्रैप्स के थ्रू पकड़ा जा सकता है। एंड मेन विथ फ्लैटरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मेन को फ्लैटरर्स के थ्रू इजिली कैप्चर किया जा सकता है। कोई इंसान कैसा भी हो, उस पर थोड़ा सा बटरिंग करो, थोड़ी फ्लैटरी करो, वो आपकी बातों में आ ही जाएगा। सो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। सीजर को वहां पे लाना मैं कर लूंगा, मैं उसको इतना फ्लैटर करूंगा ना कि उसको वहां पे आने से कोई रोक नहीं सकता है। बट व्हेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरर्स, ही सेज ही दैट। देखो, मैन को फ्लैटरी के थ्रू बहुत इजीली कन्विंस किया जा सकता है। और मैं सीजर के मुंह पे क्या कहता हूँ, सीजर मुझे पता है आप फ्लैटरी को हेट करते हो। वो कहता है हाँ मैं फ्लैटरी को हेट करता हूँ, जबकि वो सबसे ज्यादा फ्लैटरी पसंद करता है और उसी का फायदा मैं उठाऊंगा और वहां पे उसको लेके आऊंगा। Being then most flattered, let me work, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आराम से लेके आऊंगा। For I can give his humor true bent and I will bring him to the capital. See, मैं उसके जो ह्यूमर है, उसकी जो इमेजिनेशन है, उसको मोड़ के कन्विंस करके कैसे भी लेके आऊंगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। कल मैं सेनेट हाउस में लाने की जिम्मेदारी मेरी। कैसियस, ने वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फेच हिम। काम करते हैं, नहीं हम सब लोग चलते हैं उसको वहां पे लाने के लिए, ताकि कोई कहीं से भी चूक ना रहे। ब्रूटस, बाय द 8th hour इज दैट द अटमोस्ट, देखो इज दैट द टाइम लिमिट, 8 बजे तक वहां पे सब लोग मिल जाते हैं सीजर के घर पे। सिनो, बी दैट द अटमोस्ट एंड फेल नॉट देम, हाँ वो मैक्सिमम रहेगा, फेल मत करना, आ जाना सब लोग। मेटलिस, कायस लिगैरियस दैट बियर कैसियस हार्ट। सी, कायस लिगैरियस जो है उनको सीजर से बहुत ज्यादा नफरत है। लिगैरियस एक और कॉन्स्पिरेटर है, तो सीजर से उसको बहुत ज्यादा नफरत है। Who rated him for speaking well of Pompey? Who actually scolded him? Rated मतलब rebuked, scold करना, क्योंकि वो पॉम्पे की तारीफ कर रहा था। लिगेरियस जो है वो पॉम्पे की तारीफ कर रहा था, तो सीजर ने उसको बहुत डांटा था। I wonder none of you have thought of him. मेरे ख्याल से उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपने प्लान में। सब लोग उसको भूल गए हैं, किसी ने उसके बारे में सोचा ही नहीं है। Brutus, now good Metellus, go along with him. He loves me well and I have given him reasons. Send him but hither and I will fashion him. Good Metellus, एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, लिगेरियस के पास, लिगेरियस को मेरे पास भेज दो। एंड लिगेरियस मुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसके साथ कुछ अच्छा किया भी है जिसकी वजह से वो मुझसे इतना प्यार करता है। जाओ तुम उसको यहाँ पे ले आओ, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर लूंगा, मैं उसको कन्विंस कर लूंगा। कैसियस, द मॉर्निंग कम्स अपॉन अस, वी विल लीव यू। चलो मॉर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट आ गई है, अब हम लोग जाते हैं। ब्रूटस, एंड फ्रेंड्स डिस्पर्स योरसेल्फ but all remember what you have said and show yourselves true Romans. अभी तो सब लोग डिस्पर्स हो जाओ, लेकिन भूलना नहीं हमारा मोटिव क्या है, हमारा प्लान क्या है, और ट्रू रोमन्स वाली स्पिरिट मत अपने अंदर से हटाना, याद रखना वी आर ट्रू रोमन्स। ब्रूटस, गुड जेंटलमैन, लुक फ्रेश एंड म्योरली, लुक ब्राइट, लुक चेयरफुल, लुक हैप्पी, सब लोग खुश दिखो। लेट नॉट अ लुक्स पुट ऑन अ पर्पस। सी, हमारे जो ग्लूमी फेसेस हैं, हमारे जो ग्लूमी प्लान्स हैं, हमारे फेसेस पे आने नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हमारे फेसेस पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए।
बट bear it as Roman actors do. just like Roman actors होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट से एक्टिंग करते हैं, मन में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन फेस पे अपने मोटिव को दिमाग पे रख के अपना एक्टिंग करते हैं. वैसे ही हमें करना है. With untired spirits, untired मतलब not getting tired, tireless, and formal consistency, कामनेस ऑफ मैनर, बिल्कुल शांति रखना है, मैनर में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है. एंड सो गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन. ओके, बाय बाय, गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन, बाय बाय. एक्सवेंट ऑल एक्सेप्ट ब्रूटस. सिर्फ ब्रूटस रह जाता है, बाकी सब वहां से चले जाते हैं. ब्रूटस का तो घर ही है. अब क्या है? बॉय ल्यूशियस फास्ट अस्लीप. फिर वो अपने सर्वेंट को बुला रहा है, ल्यूशियस सो गए क्या? इट इज नो मैटर, चलो भैया एंजॉय कर लो अपनी स्लीप. एंटर पोर्शिया. पोर्शिया, Brutus my lord. So Portia has been observing Brutus since a long. Of course, वो उसकी वाइफ है, तो वो उसकी हर छोटी छोटी एक्शंस पे निगाह रखी हुई है. तो वो वहां पे जाके उससे पूछती है कि भाई क्या बात है, क्यों इतना आजकल डिस्टर्ब हो. Portia, Brutus my lord. Brutus, Portia, what mean you? Wherefore rise you now? So it was early 3 o'clock in the morning. So Brutus is asking Portia, why are you here? इतना सुबह क्यों उठी हुई हो? It is not for your health thus to commit your weak conditions to the raw cold morning. See, it is not appropriate for you to get up so early in the morning. That too, the weather is not nice. इतनी ठंडक में इतना सुबह उठना कोई तुक नहीं है. इतना सुबह क्या कर रही हो उठ के? तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी. Portia, not for yours neither. मेरी ही नहीं, आपकी भी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है इतना सुबह उठना. You have urgently, Brutus, stole from my bed. I don't understand, Brutus, how unkind of you that you simply got off from my bed. आप क्यों एकदम से उठ के बेड से चले गए? And yesterday night at supper, और रात में, कल रात में during dinner, you suddenly rose and walked about, musing and sighing with your arms across. So this again shows the disturbed condition of Brutus. कल रात में भी आप एकदम से खाना खाते समय उठ गए, मूव करने लगे, अपने में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब you are thinking, you are deeply thinking about something. क्या बात है? With your arms across, आप बहुत ज़्यादा fold arms करके you are deeply thinking something. And when I asked you what the matter was, you stared upon me with ungentle looks. Ungentle looks means गुस्से में, not in a good temper. So कल जब आपसे मैंने पूछा आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपने मुझे बहुत ही गुस्से में देखा. I urged you further, then you scratched your head. मैंने जब और आपसे रिक्वेस्ट किया, you scratched your head. And you too impatiently stamped your foot. और आपने बहुत ही impatiently, very rudely अपना foot को stamp किया. And yet I insisted, yet you answered. Now मैं फिर भी आपसे पीछे पड़ी रही कि आप मुझे बताओ क्या बात है, क्या बात है. But you did not reply. आपने मुझे reply नहीं दिया. But with an angry gesture of your hand gave sign for me to leave you. You simply just gave a sign with your hand कि जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है. So I did. तो मैं वहाँ से चली गई. Fearing to strengthen that impatience, which seemed too much unkindled. Unkindled मतलब excited. मुझे डर लग रहा था कहीं मैं आपको और ज़्यादा excite ना करूँ या irritate ना करूँ. And this is the reason why मैं कल रात में चुपचाप चली गई. Although I know that you are somewhere disturbed, you are not in your normal way. तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको और ज़्यादा परेशान ना करूँ. आप ऑलरेडी बहुत परेशान थे, तो मैं कल बिना बोले वहाँ से चली गई. And withal, hoping it was but an effect of humor. See, I thought that it was just a temporary effect. मुझे लगा ये बहुत ही नॉर्मल इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट है. जनरली लोगों को कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे लाइक माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है. मुझे लगा ये टेम्पररी इफेक्ट है. Which sometimes hath his hour with every man. Every man sometimes or the other faces such kind of चेंज इन नेचर, चेंज इन ह्यूमर. तुम 1 घंटा 2 घंटा हो गया, थोड़ा इफेक्ट मुझे लग रहा था. बट ये तो आप कल रात से अभी तक आप इतना ज़्यादा परेशान हो, आप सोए भी नहीं हो. It will not let you eat, nor talk, nor sleep, and could it work so much upon your shape as it had much prevailed on your condition, I should not know you, Brutus. लेकिन ऐसा कौन सा थॉट है, क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है जिसकी वजह से ना आप खा पा रहे हो, ना सो पा रहे हो, आप खुद इतना ज्यादा चेंज हो गए हो कि मैं आपको रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ. ब्रूटस, व्हाट इज इट? यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विथ मी. टेल मी व्हाट इज इट दैट इज ईटिंग यू. टेल मी व्हाट इज इट दैट इज डिस्टर्बिंग यू सो मच. ऐसी कौन सी बात आ गई है जो आप इतना ज्यादा टेंशन में आ गए हो.
Dear my lord, make me acquainted with your cause of grief. I request you, please tell me the reason for your pain, sufferings. क्या reason है, क्या बात है जो आप इतना ज़्यादा टेंशन में हो? Brutus, I am not well in health and that is all. कुछ नहीं यार, तबीयत नहीं सही है थोड़ी सी, जाओ यहाँ से. Portia, Brutus is wise and were he not in health, he would embrace the means to come by it. See, Brutus एक intelligent man है. अगर उनकी तबीयत नहीं सही होती तो he would have taken suitable steps अपनी तबीयत सही करने के लिए. Brutus, why so I do? Good Portia, go to bed. अरे मैं वही कर रहा हूँ, मैं स्टेप्स ही ले रहा हूँ अपनी तबीयत सही करने के लिए. Portia, प्लीज तुम सोने जाओ. You go to bed. Portia, is Brutus sick? क्या Brutus बीमार है? Is it physical to walk unbraced? Unbraced मतलब without clothes. अच्छा बीमार हो और बिना कपड़ों के इतनी ठंड में टहल रहे हो. And suck up humors of the dank morning. Humors मतलब moisture and dank means damp morning. तो इतनी ठंडक में इतनी डैम्प मॉर्निंग है, आप बिना कपड़ों के ऐसे टहल रहे हो, तो ये तबीयत सही करने का कंडीशंस है. आप तबीयत सही करने के लिए स्टेप्स ले रहे हो. What is Brutus sick? And will he steal out of his wholesome मतलब warm bed to dare the wild contagion of the night, ताकि unhealthy infections of the night attract करे. मतलब आप अपने कंफर्टेबल बेड को छोड़ के बिना कपड़ों के बाहर टहल रहे हो ताकि बाहर की जो इतनी डैम्प इतनी ठंडक वाली हवाएं आपको अफेक्ट करे. मतलब आप तबीयत सही नहीं है और आप ये सब कर रहे हो. And tempt the rheumy and the unpurged air to add onto his sickness. Unwarmed air and ये जो गंदी एयर है, इतनी ठंडक वाली एयर है, आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि आपको और ज्यादा तबीयत खराब कर दे. No, my Brutus, you have some sick offense within your mind, which by the right and virtue of my place I ought to know. See, no, I know that you are not physically ill. आप physically sick नहीं हो. Definitely something is there in your mind which is disturbing you, and being your wife, आपकी मैं wife हूँ and I have the full right to know that what is it that is disturbing you so much. मुझे आप बताओ तो प्रॉब्लम क्या है, क्या बात है जिससे आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो. And upon my knee I charm you, charm मतलब request you, and I'm sitting on my knees, मैं अपने घुटनों के बल बैठ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ. By my once commanded beauty, beauty जिसको आप इतना ज़्यादा प्रेज करते थे, एक टाइम था जब when you used to like praise my beauty so much, मैं उसकी by all the woes of your love and that great vow which did incorporate and make us one, that means marriage. मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी ब्यूटी की जिसकी आप कसम खाते थे, इतने प्रोमिसेस आप करते थे, मैरिज की कसम आप प्लीज मुझे शेयर करिए that what is it that is disturbing you, that you unfold to me yourself, your half, what you are heavy, please. I am your half, I am your better half. मैं आपकी बीवी हूँ, मेरे को प्लीज बताइए what is it that is eating you, what is it that is disturbing you so much. Please do let me know. And what men tonight have had restored to you, for here have been some 6 or 7 who did hide their faces even from the darkness. तो इसको कुछ ना कुछ like पता चल गया है कुछ गड़बड़ होने वाला है. तो शी इज आस्किंग, ये बताइए ये 5-6-7 लोग जो आए थे जो डार्कनेस में भी अपना चेहरा हाइड किए हुए थे, ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे? कोई तो रीजन है, प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विथ मी. मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे आए थे जिन्होंने अपनी चेहरा डार्कनेस में भी छुपाया हुआ था. Brutus, kneel not gentle Portia, please don't kneel gentle Portia. Portia, I should not if you were gentle Brutus. See, मुझे आपकी वजह से नील करना पड़ रहा है. Why? Because you are no longer gentle. Brutus, अब आप gentle हो ही नहीं, आप मेरी feelings को समझ ही नहीं रहे हो. अगर आप समझ रहे होते तो मुझे नील ही नहीं करना पड़ता. Within the bond of marriage, tell me Brutus, is it expected I should know no secrets that appertains to you? See, bond of marriage मतलब marriage की secrecy होती है, मेरे पास पूरा right है. आप बताओ क्या मुझे आपकी फीलिंग्स आपकी बातें नहीं पता होनी चाहिए? यू टेल मी दैट. Am I yourself but as it were in sort or limitation to keep you with at meals, to comfort your bed and talk to you sometimes? क्या मेरा बस इतना रोल है that I should sit with you, I should talk with you, I should comfort you? Nothing more than that. I do not have the right to share any troubles with you. I do not have the right to share your problems and difficulties with you. Dwell I but in the suburbs of your good pleasure, if it be no more, Portia is Brutus' harlot and not his wife. See, harlot is a cheap woman, a person who sleeps with another person for the sake of money.
if I do not have the right to share your problems, if I do not have the right to share your difficulties, then I am no more than a cheap woman who sleeps just for money. I am no less than a harlot. Brutus, you are my true and honorable wife, as dear to me as the dewy drops that visit my sad heart. No, you are very honorable. Just the way the blood visits my sad heart, the blood is important to me in order to live in the similar manner. You are also very important for my survival. Portia, if this were true, then I should know the secret. अगर जो आप बोल रही है सच है, then I have the full right to know the secret. मुझे बताइए क्या बात है, क्यों आप disturbed हो? What is it that is disturbing you so much? I grant I am a woman, but withal, see, although I know, देखो women की ये बहुत पुरानी बात है कि women के पेट में कोई बात नहीं पचती है. तो भाई वो कह रही है, I admit that I am a woman, but a woman that Lord Brutus took to wife, but still I am that worthy woman जिसको Lord Brutus ने अपनी wife की तरह accept किया. I grant I am a woman, but withal a woman well reputed, Cato's daughter. Cato was a very very powerful orator, a speaker. So although मैं women हूँ, लेकिन मैं Cato की बेटी हूँ. That means मेरे अंदर will power है. I'm just not an ordinary woman. Believe me, you can confide your secrets with me. आप अपने secrets मुझसे share कर सकते हैं. मैं किसी को नहीं जाके बता रही हूँ. Think you I am no stronger than my sex, being so fathered and so husband. फिर भी आपको लगता है कि मैं नॉर्मल women से ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ. मेरे इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इतने अच्छे फादर हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है. But this is not true. Tell me of your counsels. Counsels मतलब problem. Tell me क्या problem है. I will not disclose them. I promise I'm not going to share it with anyone. मैं किसी को नहीं बताऊंगी. I have made strong proof of my consistency. मैंने अपनी determination का proof भी दिया है. क्या दिया है? Giving myself a voluntary wound here in the thigh. वो क्या कर रही है, जितनी देर में बात कर रही है उतनी देर में अपनी थाई पे कैंडल लगा के रखी है ताकि उसकी थाइस जल जाए. इन ऑर्डर टू प्रूव कि देखो मैं इतना ज्यादा वूंड सह सकती हूँ, लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग. मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है. तो मेरे अंदर बहुत सारा पेन, प्रॉब्लम्स सफर करने का, इंड्योर करने का मतलब कैपेसिटी है. Giving myself a voluntary wound here in the thigh, I can bear it with patience. See, मैं अपना wound को, अपने thigh पे जो wound मुझे मिला है, देखो मैं खुद जानबूझ के voluntary खुद जानबूझ के दे रही हूँ और मेरे अंदर patience है कि मैं उसको झेल भी सकूँ. And not my husband's secret. अगर मैं इतना ज़्यादा pain जब endure कर सकती हूँ कि मैं अपने husband की secret नहीं endure कर सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ, मतलब छुपा नहीं सकती हूँ. Brutus, oh ye gods, render me worthy of this noble wife. Oh God, please, will you make me worthy enough? कितनी अच्छी बीवी मुझे दी है. फिर अंदर से खटखटाहट होती है. हाँ, one knocks. रुको, कोई knock कर रहा है. Portia, go in a while, and by thy bosoms shall partake the secret of my heart. जाओ, अंदर जाओ. Very soon I shall reveal what is there in my heart. मैं अपना सब कुछ reveal करता हूँ. All my engagements I will constitute to this. I will tell you, I will explain all my engagements, everything to you very soon. All the character of my sad brows, everything, the sad expression on my face, I will give explanation for everything. क्यों मैं इतना दुखी हूँ, क्यों मैं इतना परेशान हूँ, मैं तुम्हें जल्दी इसका सारा explanation देता हूँ. प्लीज अभी अंदर जाओ. Leave me with his, जल्दी से यहाँ पे जाओ. Exit Portia. Lucius, who's that knocks? Lucius कौन है जो knock कर रहा है? Re-enter Lucius with Ligarius. Remember, लिगैरियस को जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उन्होंने बोला था कि वो भी पर्सन है, वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट हिम इनटू अ प्लान. तो ये वही है. ल्यूशियस, हियर इज अ सिक मैन दैट वुड स्पीक विथ यू. सर, यहाँ पे एक सिक मैन है हु वुड लाइक टू स्पीक विथ यू. ब्रूटस, कैस लिगैरियस दैट मेटलस स्पीक ऑफ. अरे मेटलस सिम्बर ने जिसके बारे में बात किया था, ये वही है क्या? बॉय स्टैंड असाइड. कैस लिगैरियस, हाउ? ओके, कैसे हैं कैस लिगैरियस? लिगैरियस, what if good morrow from a feeble tongue? I wish you good morning from a weak tongue, because he was not well. Brutus, oh what a time have you chose out, brave Caius, to wear a kerchief. बेटा, एक्चुअली में ये रिचुअल हुआ करता था कि जितने भी लोग बीमार होते थे या वीक होते थे उस समय, मतलब जो दे आर नॉट वेल, तो दे यूज टू वेयर अ स्कार्फ इन ऑर्डर टू शो कि आई एम नॉट वेल. सो वही वो बोल रहा है कि यू हैव चूजन द मोस्ट रॉन्ग टाइम टू बी अनवेल. बिल्कुल गलत समय चूज किया है बीमार होने का. Would you were not sick? I wish कि तुम काश बीमार ना होते. Ligarius, I am not sick if Brutus have in hand. See, I am not sick if Brutus requires me in any deed. अगर किसी काम में Brutus की मेरी जरूरत है तो मैं बीमार नहीं हूँ. Any exploit worthy the name of honor. See, any deed which is done
अंडर द नेम ऑफ ऑनर, कोई भी डीड जो कि ऑनरेबल है उसके लिए मैं बीमार नहीं हूँ, आप बताइए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। ब्रूटस, such an exploit have I in hand, Ligarius, इस तरह की डीड मेरे हाथ में है Ligarius. Had you a hurtful ear to hear of it, सुनने को तुम तैयार हो Ligarius. By all the god that Romans bow before, yes, all the god, before all the god जिनके सामने Romans worship करते थे, bow करते थे. I here discard my sickness, I here remove, I here cast off my sickness, मैं अपनी sickness हटाता हूँ. Soul of Rome, brave son, derived from honorable loins. सी यहाँ पे वो ब्रूटस की तारीफ कर रहा है, लॉइंस मतलब फादर. सो ही इज एक्चुअली एप्रिशिएटिंग ब्रूटस. वो कह रहा है, ओ ब्रूटस, यू आर द सोल ऑफ रोम, तुम तो जान हो रोम की, तुम तो एक ब्रेव सन हो जिसके फादर बहुत ऑनरेबल थे. दाउ लाइक एन एक्सॉर्सिस्ट हैज कॉन्जर्ड अप माई मॉर्टिफाइड स्पिरिट. सी एक्सॉर्सिस्ट वो होते हैं जो किसी के अंदर भूत प्रेत घुस जाता है तो उसको निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं. तो बिल्कुल मेरे अंदर की डाइंग स्पिरिट को तुमने एक एक्सॉर्सिस्ट की तरह बाहर निकाल दिया है, तुमने मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी विगर भर दिया है. Now bid me run and I will strive with things impossible. अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तुम बोल के तो देखो, रन करने के लिए मैं मोस्ट इम्पॉसिबल चीजों के लिए भी दौड़ जाऊंगा. मेरे अंदर इतना करेज तुमने भर दिया है. ये get the better of them. What's to do now? Yes, tell me. क्या काम है? मैं तैयार हूं करने के लिए. Brutus, a piece of work that will make sick men whole. एक ऐसा काम है जो बीमार लोग हैं ना वो फिर से सही हो जाएंगे. Whole मतलब they will be well again. Ligarius, but are not some whole that we must make sick. See, don't you feel there are some people who are well now but हमें उनको बीमार करना है. They are talking about Caesar. तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार नहीं हैं, अभी बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन हमें उनको बीमार करना है. Brutus, that must we also. हाँ, वो भी करना है. Yes, वो भी करना है. What is it, my Caius? I shall unfold to thee as we are going to whom it must be done. Yes, जो है मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बताता हूँ. आई शैल रिवील टू यू एवरीथिंग एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मैन जिसको ये करना है, क्योंकि इन लोग को सबको, सारे कॉन्स्पिरेटर्स को कहाँ जाना था? सीजर के घर जाना था. तो चलो वहीं पे चलते समय मैं तुम्हें सारी बातें बता भी देती. Ligarius, set on your foot. ठीक है, आगे बढ़िए. And with a heart new furred, I will follow you. And now आपने मेरे हार्ट को न्यूली वे में इंस्पायर किया है, न्यू वे में इंस्पायर किया है और मैं आपको फॉलो करूंगा. टू डू आई नो नॉट वॉट, कोई ऐसा काम जिसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है. बट इट सफिस दैट ब्रूटस लीड्स ऑन मी. लेकिन मेरे लिए यही सफिशिएंट है कि मेरे आगे ब्रूटस है. मुझे नहीं पता किस काम में जा रहे हैं, वो सही है गलत है, आई डू नॉट नो, बट आई एम रियली अश्योर्ड कि ब्रूटस आगे है तो काम अच्छा ही होगा, जो भी काम होगा वो ठीक होगा. ब्रूटस, फॉलो मी देन एक्समेंट. सो यहाँ पे ब्रूटस ऑल्सो आस्क हिम कि चलो ठीक है मुझे फॉलो करो, और यहाँ पे दोनों लोग चले जाते हैं. सो होप स्टूडेंट्स दिस सीन इज क्लियर टू यू. Thank you so much for liking, sharing and commenting. Don't forget to like, share and comment, and please do keep your love with this because it's only your love that gives me so much of motivation to make more such videos. Thank you so much. Bye-bye.